Praise God. Yeah. Brother, who is translating, brother? Brother, it will be Apritam brother who will be doing the translation. Apritam, okay, brother. Okay. Apritam, brother, you're able to see the screen? Yes, brother. Okay, yeah. Praise God, brothers, for this morning. प्रभु की स्तुति हो भाइयों इस सुबह के लिए। God willing, today we'll meditate on the life of John the Baptist. और प्रभु की चाहत हुई तो आज हम मनन करेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन के ऊपर। Remember, we started off with Matthew 1 about the genealogy of Jesus. और हमने शुरुआत की थी मत्ती 1 से, जहां पे हमने यीशु मसीह की वंशावली को देखा था। How he picked up nobodies, people who could not boast about anything in themselves. और कैसे उसने उन लोगों को चुना जो कुछ भी नहीं समझे जाते थे, जो अपने विषय में किसी भी प्रकार का गर्व नहीं कर सकते थे। And how the Lord led us to look at the life of Joseph, a righteous husband who never humiliated his wife in the public. और कैसे प्रभु ने हमारी सहायता किया कि हम यूसुफ जो एक धर्मी पति था उसके जीवन को देखने में सहायता किया, जिसने कभी भी अपनी पत्नी की निंदा नहीं किया सार्वजनिक तौर पे। And we meditated on the promise that the Lord will save us from our sins. और हमने उस प्रतिज्ञा के ऊपर मनन किया कि प्रभु हमें हमारे पापों से बचाएगा। So in Matthew 3 we come to a man of God called John the Baptist. और मत्ती 3 में हम एक व्यक्ति के विषय में देखते हैं जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। Yeah, John 1:6 it says he was a man sent from God whose name was John. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 6 में लिखा है, वह ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। Now that is not just for him, that applies to every one of us in our church. We are all men and women whom the Lord allowed us to come to this earth. We are all और यह बात केवल यूहन्ना ही के लिए लागू नहीं होती है, परंतु कलीसिया में हम सभी लोगों के लिए लागू होती है जिन्हें परमेश्वर ने यहाँ आने की अनुमति दिया है। So let us not waste the time God has given us, but to fulfill the purpose why God has put us here on this earth. और इसलिए हम अपने समय को व्यर्थ न गवाएं, परंतु उस समय के उद्देश्य को पूरा करें कि क्यों प्रभु ने हमें इस संसार में भेजा है। Yeah, John the Baptist was physically speaking not a very attractive man. और यदि भौतिक तौर पे कहा जाए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कोई आकर्षित व्यक्ति नहीं था। He ate locusts and wild honey. और वो टिड्डियां और वन मधु खाया करता था। He didn't have any complaints against the Lord like the Israelites complained in the wilderness against the Lord. और उसके पास प्रभु के प्रति कोई शिकायत नहीं थी, जैसे इस्राएलियों ने परमेश्वर से शिकायत रखी थी। But he was a man who was truly anointed, and he spoke to people's conscience, not to just emotionally hype up people. और यह एक ऐसा मनुष्य था जो सचमुच में अभिषिक्त था और यह लोगों के विवेक से बात करता था। That's a mark of a true prophet of God. और यही तो एक सच्चे भविष्यद्वक्ता की पहचान होती है। We must understand that after Malachi, the last book of the Old Testament, for 400 years, God did not speak even one word to Israel. There was silence. और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि मलाकी नबी की पुस्तक के बाद परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र से एक शब्द भी 400 सालों तक नहीं कहा था। And before we look at John the Baptist, we look at his parents, Zacharias and Elizabeth. In Luke 1, it says, they were both righteous, not before people like Pharisees, but in the sight of God. और इससे पहले कि हम यूहन्ना के विषय में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में देखें, हम उसके माँ बाप के विषय में देखना चाहेंगे, जिनके विषय में लूका 1 के 6 में लिखा है कि जो जकरिया और इलिशिबा थे, वे दोनों के दोनों परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी थे, ना कि मनुष्यों के सामने। It's quite amazing. God picked up Abraham and Sarah, a childless couple despised by everyone, to build a nation. और ये बहुत ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने अब्राहम और सारा का इस्तेमाल किया, जो एक निसंतान दंपत्ति थे, उनके द्वारा एक महान राष्ट्र का निर्माण करने के लिए। And when we turn into the pages of New Testament also, God chooses a childless couple to shame the wise, the proud and the arrogant ones.
और जब हम नए नियम के पन्नों को पलटते हैं तो वहां पे भी हम पाते हैं कि परमेश्वर ने एक ऐसे ही निसंतान दंपत्ति का इस्तेमाल किया जिसके माध्यम से बुद्धिमानों और बलवानों की सामर्थ को वो लज्जित करे। So they were both righteous. Just think of the testimony if we can have brothers and sisters as husbands and wives, that husband and wife both, mother and father, are righteous in the sight of God. और आप कृपया करके इस गवाही के विषय में सोचे जो यहाँ पे कही गई है कि क्या पति और पत्नी दोनों ही या माँ बाप दोनों ही परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हो सकते हैं। Because mom and dad both are righteous, we read as a result in the next few verses later, Luke 1:15, John the Baptist was great in the sight of the Lord, not in the sight of Israel, but in the sight of the Lord. और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो दोनों माँ बाप थे ये परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे, उसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनका बेटा हुआ वह परमेश्वर की दृष्टि में महान हुआ, इसराइल की दृष्टि में नहीं परंतु परमेश्वर की दृष्टि में। Yeah, if we as fathers and mothers are righteous in the sight of God, not before people or in the church, our children also will become great, not in the church, not in the world, but in the sight of the Lord. और यदि हम माँ बाप प्रभु के सामने धर्मी रहेंगे और दुनिया के सामने या कलीसिया के सामने नहीं, तो जो हमारे संतान होंगे, बच्चे होंगे, वे भी दुनिया एवं कलीसिया के सामने नहीं परंतु प्रभु के सामने महान कहलाएंगे। And it says verse 17 that John the Baptist, he came in the spirit and power of Elijah. और 17 वचन में कहता है कि वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर आएगा। For what? किस कारण से? To turn the hearts of the fathers back to the children. ताकि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे। And disobedient to the attitude of righteous. और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए। So as to make ready a people prepared for the Lord. ताकि प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करें। So John the Baptist came to make people ready, prepared. How? और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को तैयार करने के लिए आया। किस रीति से? By turning the hearts of the fathers back to the children, the family relationships in the home. और पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेरने के द्वारा, अर्थात पारिवारिक संबंध को पुनः स्थापित करने के द्वारा। How is our relationship with one another, brothers and sisters, with the husband, wife, children? भाइयों बहनों, हमारा संबंध एक दूसरे के साथ अर्थात पति पत्नी और बच्चों के साथ संबंध किस प्रकार का है? Is there anyone among us who fought with somebody and joined this meeting without setting that matter right? और क्या हमारे मध्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी के साथ झगड़ा किया है और बिना सुलह किए इस सभा में जुड़ा हुआ है? It's good to repent. और यह भली बात है कि हम मन फिराएं। That is the main message of John the Baptist. और यही तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मुख्य संदेश है। Repent. If my heart is not turned towards my family members, if I have strife against them, I am not ready and prepared for the Lord. और यदि मेरा हृदय अपने परिवार के लोगों की तरफ नहीं फिरा हुआ है और ये तो मैं प्रभु के सामने मन फिराने के लिए भी तैयार नहीं हूं। That is the sign of a godly man, that his heart will be turned towards the children to win their hearts for the Lord. और यही तो एक भक्ति में पुरुष की पहचान होती है कि उसका हृदय उसके बच्चों की ओर फिरता ताकि वह उन्हें प्रभु के लिए जीत सके। I heard of a great godly man in South Africa. और साउथ अफ्रीका मैंने एक बहुत ही ईश्वरीय व्यक्ति के विषय में सुना। He had about 11 children who grew to adulthood. और उसके 11 बच्चे थे जो व्यस्क हो गए। 5 of his sons became servants of the Lord. और उसके जो 5 बेटे थे वे प्रभु के सेवक बने। And 4 of his daughters, they did not fall in love with some worldly guy and marry, but they married servants of God. और उसकी जो 4 बेटियां थी वो किसी सांसारिक लड़कों के साथ उन्होंने विवाह नहीं किया प्रेम में पड़ के, परंतु उन्होंने प्रभु के दासों से ही विवाह किया। Just think of that, 9 of his children out of 11, 9 of them totally devoted to the Lord. और आप इस बात के विषय में सोचिए कि उसके 11 बच्चों में से 9 बच्चे प्रभु के प्रति पूरे रीति से समर्पित हुए। And the second generation was even more wonderful. और जो उसकी दूसरी पीढ़ी आई वह उससे भी और बेहतर निकली। 10 grandsons became servants of God and 13 of the grandchildren became missionaries. और जो उसके 10
नाती हुए वे प्रभु के सेवक बने और 13 जो उसके नाती पोते हुए वे मिशनरी बने प्रभु के लिए। No, we are not saying that becoming a full-time ministry is greater than those of us who work in a job and serve the Lord. No, that is not what my intention is. But my intention is how the effect of one father, a godly man, had an effect of 9 of his children and 23 of his grandchildren. और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम लोग जो पूर्णकालिक मसीही सेवकाई में नहीं है परंतु नौकरी के साथ साथ मसीह की सेवकाई कर रहे हैं, वे पूर्णकालिक सेवकाई वालों से कुछ कम है, परंतु मैं एक भक्तिमय व्यक्ति के विषय में बताना चाह रहा हूं जिसकी 9 संतान और उसके 13 नाती पोते प्रभु के अनुसरण करने वाले बने। Our relationship with one another in different places shows whether we are ready and prepared for the Lord. और हमारा जो संबंध है दूसरों के साथ अनेक जगहों पे यह इस बात को दर्शाता है कि क्या हम प्रभु के लिए तैयार हैं। Yeah, that man of God, his name is Andrew Murray. और यह जो व्यक्ति था प्रभु का दास, उसका नाम था एंड्रू मरे। We cannot write wonderful books or articles like him. He has written some wonderful books and articles. We cannot do that. But all of us can follow his life example. Lord, help me to be a godly father where my heart is turned towards my wife and children to win them for you. और हम में से हम लोग उन भाई एंड्रू मरे के समान पुस्तकों को और लेखों को नहीं लिख सकते हैं। उन्होंने बहुत ही अद्भुत पुस्तकों और लेखों को लिखा है, परंतु हमारे अंदर यह दुआ हो सकती है कि हम प्रभु से कहें कि हमारी सहायता करके हम अपने बच्चों के लिए ऐसा उदाहरण बन सके और उन्हें तेरे लिए जीत सके। If our heart is not turned towards our family members, or if it is against our family members or somebody in the church, let us repent. We are going in the wrong direction. Let us take a U-turn. और यदि हमारा हृदय हमारे परिवार के लोगों की तरफ नहीं फिरा है या किसी कलीसिया के प्रियजन की तरफ नहीं फिरा है, तो हमें आज एक यू टर्न लेकर के मन फिराने की आवश्यकता है। The earlier we take the U-turn, earlier we repent, the better it is. और जितने जल्दी हम यू टर्न लेकर के मन फिराते हैं उतना ही बेहतर होता है यह हमारे लिए। Like for example, if you're traveling to Mumbai for conference, और उदाहरण स्वरूप यदि आप कॉन्फ्रेंस के लिए मुंबई जा रहे हैं, पनवेल जा रहे हैं, we should reach from here in maximum 2.5-3 hours, not more than that. और हमें अधिक से अधिक 2.5-3 घंटे में वहां तक पहुंच जाना चाहिए। But if I am arrogant and pride, I will not listen to anybody. I go towards the direction of Bangalore. परंतु यदि मैं घमंडी और अहंकारी हूं और मैं किसी की बात नहीं सुनता हूं और मैं बेंगलोर की दिशा में आगे बढ़ता हूं, At least after 5 hours, I should have a humility to think I've traveled for 5 hours. I have not reached Panvel yet. Let me take a U-turn or call some brother. और कम से कम 5 घंटे उस मार्ग में आगे बढ़ने के बाद मेरे अंदर यह नम्रता तो होनी ही चाहिए कि 5 घंटे हो गए मैं अभी तक पनवेल नहीं पहुंचा हूं, तो मैं हो सकता है मैं एक यू टर्न ले लूं या फिर किसी एक भाई को फोन करके पूछ लूं कि क्या रास्ता है। But I keep traveling on and on. After 20 years, after reaching Bangalore, then I want to take a U-turn. Yes, I can repent. I can take a U-turn, but it will take 20 more hours to come back again. और उसके बाद मैं 20 घंटे गाड़ी चला करके बेंगलोर पहुंच जाता हूं और फिर वहां पे मैं निर्णय लेता हूं कि मैं वहां से यू टर्न लेकर के वापस आऊंगा। हाँ, वहां से यू टर्न लिया जा सकता है, लेकिन उसमें और 20 घंटे अधिक लगेंगे। That's why teenagers are young people. Let us not waste time. Don't wait till you become 30s. You'll regret it later. और इसलिए जो किशोर लोग हैं और जो जवान लोग हैं, आप मन फिराव के लिए आप देरी विलंब ना करें, नहीं तो आप जब 30 वर्ष के आयु में पहुंचेंगे तब आपको पछतावा होगा। And it's quite amazing that how the Lord prepared John the Baptist in the most unusual way, all alone in the desert. और यह बहुत ही अद्भुत बात है जब हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मरुस्थल में एक बहुत ही असामान्य तौर पे तैयार किया था। In Luke 1:80, you read that John the Baptist, he lived in the desert all alone in the secret place before God until he publicly appeared to Israel. और लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 80 वचन में लिखा है कि वह बालक इस्राएल पर प्रकट होने के दिनों तक जंगल में अकेले ही रहता रहा। Many times we young people, we don't allow God to prepare us, to crush us, break us in the secret place. We straight away want to come to the public. और कई बार ऐसा होता है कि हम जो जवान लोग हैं, हम प्रभु को अनुमति नहीं देते हैं कि हमें तोड़े और हमें कुचले गुप्त के स्थानों में, परंतु हम सीधे सीधे पे सार्वजनिक तौर पे आगे आना चाहते हैं। Praise God, John the Baptist submitted.
और प्रभु का धन्यवाद हो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अधीनता को स्वीकार किया। He was all alone before the Lord in the wilderness, in the desert, dwelling in the secret place of the Most High. और वह एक अकेले मरुस्थल में था, परंतु वह सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में वास कर रहा था। Brothers and sisters, do you know God wants to prepare each one of us, sisters, while you're in the kitchen, in the home, or brothers, when you're doing the work all alone, God wants to prepare us. Let us not neglect it. और भाइयों बहनों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि बहनों जब आप किचन में कार्य कर रही होती हैं और भाइयों जब आप अपने कार्य को कर रहे होते हैं तो प्रभु हमें उन समयों में भी हमें अकेले में तैयार करना चाहता है। And you remember he had come in the spirit of Elijah. John the Baptist came in the spirit of Elijah. और आप इस बात को स्मरण रखें कि यह जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था यह एलिया की आत्मा में होकर आया था। The first thing mentioned about Elijah in 1 Kings 17:1 is that he was a man who stood before the Lord. और एलिया के विषय में जो सबसे पहली बात जो लिखी गई है वह पाया जाता है पहला राजा उसके 17वें अध्याय के पहले वचन में कि वह कहता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। Think of that, standing before the Lord. Sorry brother. Think of that sentence, to stand before the Lord. और आप इस कथन के विषय में सोचे कि परमेश्वर के सामने खड़ा रहना। When I speak at home with my wife or children, Lord, I want to stand before you. और जब मैं अपने घर में बात करता हूं अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, तो प्रभु जी मैं तेरे सामने खड़ा होना चाहता हूं। Many times we don't realize it. That's why rotten words come out of our mouth. और बहुत बार हम इस बात को नहीं पहचान पाते हैं, तभी तो हमारे अंदर से सड़े हुए शब्द निकलते हैं। When we do a money transaction or when we sit in front of the internet, Lord, I want to stand before you. और जब हम पैसों का लेन देन करते हैं या हम इंटरनेट के सामने बैठते हैं तो हमारा यह पुकार होनी चाहिए कि प्रभु मैं तेरे सामने खड़े रहना चाहता हूं। Many times we sin in these areas because we are not standing before the Lord. और अनेक बार हम इन क्षेत्रों में इसलिए पाप कर जाते हैं क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं खड़े रहते हैं। John the Baptist was a man who stood before the Lord. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक ऐसा पुरुष था जो प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहा। He didn't care what people thought about him. और उसने इस बात के विषय में कोई परवाह नहीं किया कि लोग क्या सोचेंगे। People called him he has a demon. It did not bother him. He was great in the sight of the Lord. That is all that matters. और लोगों ने उसे शैतान करके, दुष्टात्मा कह करके बुलाया, परंतु उसे यह पता था कि वह प्रभु की दृष्टि में महान है और उसके लिए यह बात पर्याप्त थी। So when John the Baptist was in the secret place in the desert, God was sharing his burden with John. और इसलिए जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरुस्थल में गुप्त स्थानों में था तो परमेश्वर अपने बोझ को यूहन्ना के साथ बांट रहा था। Why is it that God is not able to share his burden with us? और ऐसा क्यों है कि प्रभु अपने बोझ को हमारे साथ नहीं बांट पाता है? Because we are taken up with our own earthly burdens. क्योंकि हम अपने स्वयं के सांसारिक बोझों से बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। Sometimes we exaggerate. Oh, I am the only one going through this. Everybody is having a cushy time. That's not true. और कई बार हम बढ़ा चढ़ा करके ऐसा कहते हैं कि मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो इन परिस्थितियों से होकर के गुजर रहा हूं, बाकी सारे लोगों का समय हर्ष और उल्लास से बीत रहा है। Can we do an exchange? Lord, I want to give my burdens to you. You take care of them. Lord, please share your burden with me. Your burden is light. और क्या हम प्रभु के साथ एक आदान प्रदान कर सकते हैं जहां पे हम कहें कि प्रभु जी मैं अपने बोझों को तेरे ऊपर देना चाहूंगा और कृपा करके क्या आप अपने बोझ को मेरे ऊपर दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो जुआ है, आपका जो बोझ है वो हल्का है। There's a wonderful promise in Jeremiah 15:19 where the Lord himself says, you will stand before me. और एक अद्भुत प्रतिज्ञा है यिर्मयाह नबी की पुस्तक 15 अध्याय उसके 19 वचन में जहां पे प्रभु स्वयं कहता है कि तू मेरे सामने खड़ा होगा। When does that happen? और यह बात कब होगी? First of all, I need to return. I need to take a U-turn and come to the Lord. सबसे पहली बात तो मुझे मन फिराने की आवश्यकता है, मुझे यू टर्न लेके प्रभु के पास आना है। And I need to separate all the worthless things from the precious. और उसके बाद मुझे निकम्मे चीजों से हर एक अनमोल चीजों को अलग करके निकालना है। All the worthless time I spend and all the worthless words I speak. और जितना निकम्मा समय मैं व्यर्थ गंवा देता हूं या जितने निकम्मे शब्द मेरे होठों से निकलते हैं,
And the wonderful promise is, if I separate that, it says every one of us, brothers and sisters, can become a mouthpiece. We may not be able to preach, that's fine, but we can become the mouth of God. What God wants to speak, will speak through you, brother and sister. और जब हम ऐसा करेंगे, अर्थात अनमोल को निकम्मे से अलग करेंगे, तो हम प्रचार तो नहीं कर पाएंगे, परंतु हम प्रभु की मुख की आवाज बनेंगे, जो और भी अद्भुत बात है. Yeah, because John stood before the Lord, he received boldness from the Lord to rebuke Herod. Herod was living in sexual sin. He was living with his brother's wife. और सिर्फ इसलिए क्योंकि यूहन्ना जो था वो प्रभु की उपस्थिति में रहा करता था, उसने साहस को प्राप्त किया, निर्भीकता को, और उसी निर्भीकता के साथ उसने हेरोदेस को डांट लगाई, क्योंकि हेरोदेस जो था वो लैंगिक पाप में जीवन बिता रहा था. उसने अपनी भाई की पत्नी को रख लिया था. The reason we don't have boldness is because we don't stand before the Lord like John the Baptist and like Elijah. और हमारे पास निर्भीकता इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रहते हैं. And you read a wonderful verse in Luke chapter 3, verse 1 and 2. और हम एक अद्भुत वचन को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय पहले 2 वचन में. There, verse 1 and 2, it is mentioned about all the political leaders who had such tremendous power on the earth. और पहले और दूसरे वचन में वहां पे सारे राजनीतिक अगुवों के विषय में लिखा गया है, जिनके पास इस दुनिया में बहुत ज्यादा सामर्थ्य थी. And there were religious leaders like Annas and Caiaphas who knew Bible knowledge in their head. और उसके बाद धार्मिक अगुवों के विषय में लिखा है, जैसे हनन्याह और कैफा, जिनके पास हर प्रकार का ज्ञान था बाइबल का उनके दिमाग में. But God bypassed all of them. He did not speak to any of them, but he spoke. It says, Luke 3:2, the word of God came to John in the wilderness. He was not in a Bible college. परंतु परमेश्वर ने इन सारे लोगों को दरकिनार कर दिया. और 3 अध्याय के 2 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बात किया, जैसे लिखा है, जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा. Yeah, God always speaks to humble people, not to the proud people. और परमेश्वर हमेशा दीन और नम्र लोगों से बात करता है, घमंडी और अहंकारी लोगों से नहीं. Like you read that beautiful chapter in Jeremiah 15, I think it says, Lord, your words were found and I ate them, and your words became for me a joy and the delight of my heart. That's how John the Baptist was enjoying the word of God in the wilderness. और जैसा यिर्मयाह नबी की पुस्तक 15वें अध्याय में लिखा है कि तेरे वचन को मैंने पाया प्रभु जी, और जब मैंने उन वचनों को खाया तो वो मेरे हृदय का आनंद और मेरे हृदय में हर्ष का कारण बन गए. और ऐसा ही हुआ जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु के वचन को प्राप्त किया. Yeah, God's word, my dear brothers and sisters, is much more sweeter than honey, much more pleasurable than even the legitimate sexual pleasure in marriage, much more than all that. और जो प्रभु का वचन है वह मधु से भी ज्यादा मीठा है, और जो वास्तविक जो लैंगिक सुख जो विवाह में मिलता है उससे भी बढ़ करके सुखदायक है. Yeah, and it says, Jeremiah says, Lord, I did not waste my time sitting with the jokers, with the merrymakers. और यिर्मयाह ने कहा कि प्रभु जी, मैं अपना समय मन बहलाने वालों की मंडली में बैठ करके नहीं गंवाता था. Yeah, there is a place for sense of humor, brothers and sisters. I am not saying we have to be like Pharisees, always serious faced. और हाँ, हमारे जीवनों में हास्य का एवं मजाक का एक स्थान होता है. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें हर समय फरीसियों के समान एक गंभीर चेहरे को लगाए रखना है, But not to waste time always merrymaking. परंतु हमें हमेशा मन बहलाने और मजाक करने में अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है. But to sit alone and listen to the Lord. परंतु अकेले बैठ करके प्रभु की आवाज को सुनना है. That's how John the Baptist was. He was all alone in the wilderness, listening to the Lord. He was least bothered how his dress was or food was. और इसी रीति से तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जो मरुस्थल में रहा करता था, उसे जरा भी चिंता नहीं थी कि किस प्रकार का उसका भोजन है और किस प्रकार के उसके कपड़े हैं. I'm not saying we have to dress like John the Baptist or eat like him with a strict diet, but the principle behind it. John the Baptist was not fussy. I want only this kind of food, or it has to be prepared on time, or getting irritated, the food is not ready. और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान भोजन करना या वस्त्र पहनना है, परंतु मैं यह कह रहा हूं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वो किसी विशेष भोजन को लेकर के वह उससे ग्रसित नहीं था, और ना ही वह चिड़चिड़ाता था कि खाना समय पे नहीं पका या खाने में देर हो रही है, इन बातों को लेकर.
And we read in John chapter 1, verse 37. और हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 37 वचन में। John the Baptist already had some disciples. यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पहले ही से कुछ चेले थे। And it says 2 of the disciples that John the Baptist had, they heard John speak and they followed Jesus. और यहाँ पे कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के 2 चेलों ने यीशु को कहते हुए सुना और यूहन्ना को कहते हुए सुना और वह यीशु का अनुसरण करने लगे और उसके पीछे हो लिए। Brothers and sisters, that is God's will. When other people see us, the way we speak, the way we live, they must follow Jesus. और यही तो प्रभु की इच्छा है भाइयों बहनों की, जब दूसरे लोग हमें व्यवहार करते हुए या बात करते हुए देखे तो वे यीशु की ओर खींचे आए। How are we using our tongue? How is our speech? Can people follow the Lord by the way we use our tongue, the way we speak? और किस रीति से हमारी जुबान है, किस रीति से हमारी बोली और भाषा है, क्या लोग प्रभु की ओर आकर्षित हो रहे हैं हमारी बोली और भाषा जुबान की वजह से? Yeah, we have sinned so much in this area, brothers and sisters, in the area of speech. और हाँ, हम सब ने बहुत पाप किया है भाइयों बहनों, विशेषकर इस बोली और जुबान के क्षेत्र में। And in John chapter 3 verse 26, और यूहन्ना 3 अध्याय उसके 26 वचन में हम पढ़ते हैं, it says somebody came and told John that everybody is now going to Jesus. All are getting baptized by Jesus. They are all going to him. और यहाँ पे कोई व्यक्ति आकर के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहता है कि अब सारे लोग यीशु के पास जा रहे हैं और उसी से बपतिस्मा ले रहे हैं। Let us put ourselves in John's place. If all the young people or others they go to some other brother or sister for advice, nobody comes to you. How will you feel? और अब आइए हम अपने आप को यूहन्ना की जगह में रख करके देखें कि यदि सारे जवान भाइयों बहनों आपको छोड़ करके किसी और भाई के पास सलाह लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको कैसा महसूस होगा? And somebody is more appreciated than you. और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आपसे बढ़ करके सराहना की जा रही है। What a great temptation there is with jealousy in that area. और कितना बड़ा वहां पे प्रलोभन होगा जलन और ईर्ष्या को स्थान देने के लिए। You know what John the Baptist says? His joy was so full, he was so thrilled that all are going to Jesus. और आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या किया? वो बहुत ही ज्यादा रोमांचित था और उसका आनंद एकदम परिपूर्ण था इस बात को जानते हुए कि हर कोई यीशु मसीह की ओर जा रहा है। If we ask John the Baptist, John, where did you learn this? You're so joyful, you're not insecure or jealous. और हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछ सकते हैं कि यूहन्ना तूने इन बातों को कहां पे सीखा कि तेरे अंदर तू बिल्कुल भी असुरक्षित महसूस नहीं करता और तेरे अंदर आनंद की भरपूरी है। Yeah, whose son was John the Baptist? और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसका बेटा था? His mother Elizabeth was such a godly woman. When she was filled with the Holy Spirit, she was so thrilled when she saw a young Mary more blessed than her. और उसकी जो माता थी अर्थात इलीशिबा, वह भी एक भक्तिमय स्त्री थी और वह भी और ज्यादा रोमांचित हो गई जब उसने मरियम को, जो उसकी छोटी बहन थी, उससे ज्यादा आशीषित देखा। तो May God raise up such godly people in our midst. When we see others more blessed, when we see others more honored than us, may we thrill, may we rejoice in the Lord. और प्रभु ऐसे ही लोगों को हमारे मध्य में खड़ा करे कि जब हम दूसरों को हमसे ज्यादा आशीषित देखें और परमेश्वर के सामने ज्यादा ग्रहण योग्य देखें तो हम भी रोमांचित हो जाएं और हर्ष से भर उठें। Just like the mother, son also became like that. और ठीक वैसे ही जैसे माँ थी वैसे ही उसका बेटा भी बना। Let us honestly ask ourselves, what is it that brings joy to us? और आइए हम ईमानदारी से यह प्रश्न पूछे कि ऐसी कौन सी बात है जो हमारे जीवन में आनंद को लेकर के आती है। Remember, John the Baptist said, "Let the Lord increase, may I decrease. I must decrease, he must increase." और आप इस बात को स्मरण रखें जिसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि प्रभु बढ़े, वह बढ़े और मैं घटूं। If we are carnal, our joy will be an increase of money or pleasure or salary. But those who are godly, their joy will be an increase in Christ-likeness, godliness, when others are more honored than us. और यदि हम संसारिक होंगे तो
हमारा आनंद तब बढ़ेगा जब हमारे पास पैसे की वृद्धि हो, तनख्वाह की वृद्धि हो या सुख सुविधा की वृद्धि हो। परंतु यदि हम ईश्वरी होंगे तो हमारे आनंद की वृद्धि तब होगी जब हम दूसरों को देखेंगे कि हमसे ज्यादा आशीषित हैं या फिर हम मसीह के स्वभाव और स्वरूप में बढ़ रहे हैं तो। Dear brothers and sisters, even if you don't remember anything what we shared till now, let us remember at least this one verse, John 3:30. Jesus और must increase, but I must decrease. और प्रिय भाइयों बहनों, यदि आज के संदेश से आप किसी भी बात को याद नहीं रख पा रहे हैं तो कोशिश करें कि केवल इस एक वचन को याद रख पाएं जो पाया जाता है यूहन्ना 3:30 में, जहां पे कहता है कि वह बढ़े और मैं घटूं, अर्थात यीशु बढ़े और मैं घटूं। I remember Brother Zach was mentioning in one of the messages, Lord, let CFC decrease. Lord Jesus, you must increase in India, in our life and in India. और एक संदेश में मैं जैक पूनन को इस रीति से कहते हुए सुन रहा था कि प्रभु जी होने दे कि सीएफसी घटे और प्रभु यीशु मसीह तू बढ़े भारत देश में। May we all decrease, brothers and sisters. Let us all go down and be buried so that Lord alone will increase and he alone get the glory and worship and honor. और भाइयों बहनों, आइए हम सब नीचे जाएं और गड़ जाएं ताकि हम दब जाएं और प्रभु फिर उठे और केवल उसी को ही आदर मिले। Let us not be upset or offended. Oh, I am not honored. I am not thanked. Others are not appreciating me. Why is that only that brother and sister, they are being appreciated? और आप आइए हम इस बात से हताश और दुखित ना हो कि क्यों लोग मेरी सराहना नहीं कर रहे, मुझे धन्यवाद नहीं दे रहे, क्यों दूसरे भाई ही की सब सराहना कर रहे हैं। Like Elizabeth, let us be filled with the Holy Spirit and let us loudly, in fact, appreciate others. और इलिशिबा के समान हम सब पवित्र आत्मा से भरे और ऊंचे आवाज से दूसरों की सराहना करें। So that our children also can. Sorry brother. So that our children also can follow in our footsteps. ताकि हमारे बच्चे भी हमारे पद चिन्हों में चल सकें। You know, हेलो, रॉबर्ट ब्रदर। hello. हाँ ब्रदर। Can you hear me now? हाँ, yes, now I can hear you brother. John 5:35, Jesus gave a testimony that John the Baptist was a lamp that was burning first and then only after that shining. और यूहन्ना 5:35 में यीशु मसीह ने एक ऐसी गवाही दी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कि वह एक दीपक था जो पहले जलता और फिर चमकता था। Many of us young people, we straight away want to shine. We don't want to burn. We don't want to decrease. Have you seen that candle? As it burns and burns, it becomes, it decreases, and burns the light brightly so that Jesus can increase. और हम में से बहुत सारे जो जवान लोग होते हैं वे जलना नहीं चाहते परंतु केवल चमकना ही चाहते हैं। यदि आप एक मोमबत्ती को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो जैसे जैसे जलती है वैसे वैसे वो कम, उसकी जो कद है, आकार है, वो कम होते जाता है। वैसे ही यदि हम कम होंगे तो प्रभु ज्यादा चमकेगा। One more encouraging thing, brothers and sisters, John the Baptist did not do even a single miracle. और एक और जो प्रोत्साहित करने वाली बात है वह यह है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक भी आश्चर्य कर्म नहीं किया। He did not raise any dead person, but he raised a dead nation who did not hear from the Lord for 400 years. और उसने किसी भी मरे हुए व्यक्ति को नहीं जिलाया परंतु उसने एक मरे हुए राष्ट्र को जिलाया जिसने 400 वर्षों तक से जिसने प्रभु की आवाज नहीं सुनी थी। And Jesus says so clearly, we may think we want to become like John the Baptist, but Jesus says those who are least in the kingdom of heaven can become even more greater than John the Baptist in the way we live. और हम सोच सकते हैं कि हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान बनना है परंतु यीशु मसीह ने मत्ती 11:11 में कहा कि जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है। Yeah, maybe repent, brothers and sisters. और हम मन फिराएंगे भाइयों और बहनों। Let us take a U-turn, earlier the better. और हम एक यू टर्न लें और जितने जल्दी हम यू टर्न लेंगे उतना ही बेहतर होगा हम सबों के लिए। Amen. आमीन। Yeah, brothers and sisters.
Pratham brother or Naren brother, which of you are going to translate? Naren brother, is it you? ब्रदर मैं कर रहा हूँ. आप ही कर. Okay brother. Can you see my screen? नहीं भैया. अभी बताइए भाई. Yeah, brothers and sisters, praise God for what he heard and a reminder to repent faithfully before God. और भाइयों बहनों प्रभु का धन्यवाद हो जिन बातों को हमने सुना और हमें फिर से इस बात को स्मरण दिलाया गया कि हमें प्रभु के सामने मन फिराना है. Yeah, how brother explained in the end that many of us want to shine without wanting to burn. It really blessed my heart when I heard that. और जिस रीति से भाई ने इसकी व्याख्या दी कि हम में से बहुत सारे लोग बिना जले चमकना चाहते हैं और इस बात ने सचमुच में मेरे हृदय को आशीषित किया. Yeah, and also how brother was explaining that how John the Baptist was not jealous, and that how God's word says that love is not jealous. और जैसे कि भाई समझा रहे थे कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जलन करने वाला नहीं था. प्रभु का वचन कहता है कि प्रेम जलन नहीं करता है. Many times it is very difficult to be joyful about something which the Lord has not given us. और कई बार बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है उन बातों के लिए आनंद मनाना जिन्हें प्रभु ने हमें नहीं दिया है. Yeah, for example, if Elizabeth, who was barren, she actually would not have had a child, would she still have been as joyful as she was when she met Mary? और इलिशिबा जो पहले से बांझ थी, यदि उस समय उसका वो गर्भ नहीं होता तो क्या वो मरियम से मिलने पर उतनी ही ज्यादा आनंदमय होती क्या? Yeah, that is one question I always ask myself, that whenever I have this restlessness in my heart, I ask the Lord, is it because I am jealous, Lord? और यह एक प्रश्न है जिसे मैं हमेशा प्रभु के सामने पूछता हूँ कि जब कभी मेरे अंदर विचलन होती है तो क्या ये इसलिए है कि मैं किसी से जलन रखता हूँ? Yeah, when we read John the Baptist's life, John the Baptist's life, there are many things that come out, especially many things brother actually brought out. और जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन का अध्ययन करते हैं तो उसमें से बहुत सारी बातें निकल कर के आती हैं और बहुत सारी बातों को भाई ने भी अभी हमारे सामने रखा है. Yeah, like for example, he wore very odd clothes and he ate very strange food. He was very unique. और जैसे उदाहरण स्वरूप बात यह थी कि वह बहुत ही अलग तरीके के कपड़े पहनता था और बहुत ही विचित्र भोजन वस्तुओं को वो खाया करता था. वो पूरा ही अलग था. Yeah, and there is this desire always in us also that we want to be very unique. और हमारे अंदर भी यही लालसा हुआ करती कि हम सबसे अलग होना चाहते हैं. Yeah, so that many a times I have at least seen that in myself, that I want to be unique so that people would notice me. और अनेक बार मैंने इस बात को अपने अंदर देखा है कि मैं इसलिए सबसे अलग बनना चाहता हूं ताकि लोग मुझे पहचानें. Yeah, I'm unique in my spirituality as well. Many times I want to show that to people. I'm very unique. I'm very different. और कई बार मैं अपनी आत्मिकता में भी लोगों को दिखाना चाहता हूं कि मैं सबसे अलग हूं और सबसे भिन्न हूं. Yeah, and most times it results in people getting attracted to me. और अनेक बार ऐसा होता है कि इसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि लोग मेरी ओर आकर्षित हो जाते हैं. My uniqueness brings people to me. और जो मेरा जो विशेषपन है वह लोगों को मेरी ओर आकर्षित करता है. Yeah, but when you really look at John the Baptist's life, he was unique because he really did not have a desire for wonderful clothes or great food. That was not his goal in life. और जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन को देखते हैं तो वो सचमुच में सबसे भिन्न इसलिए था और उसके जो कपड़े और ये अलग थे क्योंकि उसके अंदर ऐसी कोई लालसा ही नहीं थी. Yeah, when you read Luke chapter 1 verse 14 and 15, it says that he was with the Holy Spirit while yet in his mother's womb. और जब हम लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 14 और 15 वचन को पढ़ते हैं तब हम यह पढ़ते हैं कि वह गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था. Yeah, and that leading that he had, as we heard Brother Robert said, that he spent most of his life in the wilderness.
और वह जो अगुवाई उसे प्राप्त थी वह इसलिए थी क्योंकि उसने अपने जीवन का अधिकांश समय मरुस्थल में गुजारा था। Yeah, and when you read Luke 180, it says that John the Baptist grew and became strong in spirit, and he lived in the deserts until the day of his public appearances to Israel. और लूका 1 के 80 वचन में लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। Yeah, so he was unique because his focus in life was very different. He lived a life of preparation, commitment, and he had a vision in his life. और वह सबसे अलग इसलिए था क्योंकि उसने एक ऐसा जीवन जिया जो तैयारी का, समर्पण का और दर्शन का जीवन था। And that is why his life was unique, and that is what made him different. और इसी वजह से उसका जीवन सबसे अलग था और इसी बात ने उसे सबसे भिन्न बना के रखा था। So many times when the attempt to become unique can result in me being empty and not fruitful if it is pulling people towards me. और कई बार जब हम सबसे अलग बनने की चाहत रखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम खोखले हो सकते हैं और हम लोगों को केवल अपने ही ओर खींच पाते हैं। Yeah, but may we all desire for that genuine the genuine conversion that John had, which really made him unique because his desires were different. He had a new heart. और हम सचमुच में उस वास्तविक परिवर्तन की चाहत रखे जो यूहन्ना के अंदर था। Yeah, and secondly, brothers and sisters, he was a fearless confronter. He was never afraid of anybody. और दूसरी बात जो यूहन्ना की थी वह यह थी कि वह निर्भीकता से सामना करने वाला था, वह कभी भी डर के दबने वाला नहीं था। This vile-looking man had no power or position in the Jewish political system. और यह जो जंगली सा दिखने वाला व्यक्ति था, ये यहूदी राजनीतिक समाज में इसकी कोई भी ओहदा और कोई भी सामर्थ्य नहीं थी। But he spoke with almost irresistible authority. और वह ऐसे अधिकार से बात करता था जिसका कोई सामना नहीं कर सकता था। It challenged people to turn from their sins and led them to be baptized as a symbol of their repentance. और उसने लोगों को चुनौती रखा उनके सामने कि वे अपने पापों से मन फिराएं और उसके चिन्ह के रूप में उसने एक बपतिस्मा की विधि ठहराई। Yeah, he only wore a garment of camel's hair and a leather belt, as we read in Matthew chapter 3 verse 4. और जैसे हम मत्ती 3 के चौथे वचन में पढ़ते हैं, वह ऊंट के रोम का वस्त्र पहने रहता था और चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था। Yeah, think about it, brothers and sisters. He never depended on anyone for his finances, his food, or anything in life. So he could speak the truth boldly. और इस बात के ऊपर सोचिए भाइयों बहनों कि वह अपने आर्थिक सहायता एवं मदद के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहा करता था, इसीलिए तो वह सत्य के वचनों को निर्भीकता से प्रचार कर सकता था। Nobody could cut off the supplies of his life, and nobody could, offending someone did not bother him if he had to speak the truth. और कोई भी उसके जीवन की मूलभूत स्रोतों को रोक नहीं सकता था, और यदि वह खराई से बोल रहा है और तो इससे किसी को चोट लग गए तो उस बात से उसे कोई परवाह नहीं होता था। I just desire for such a spirit in me that I would always want to have God as my provider, that I would never be dependent on anybody. और मेरे अंदर हमेशा इस आत्मा की चाहत होनी चाहिए कि केवल प्रभु ही मेरा मुहैया करने वाला, चीजों को प्रदान करने वाला बने, मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहता हूँ। Yeah, we can go to the other extreme, and it can be a statement of pride as well, where I say I will not depend on anybody, but I want to be careful of that. That is not what I mean. और हम या तो एक दूसरे ही कोने में जा सकते हैं और वहां पे कह सकते हैं, गर्व पूर्वक हम कह सकते हैं कि मैं दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता हूँ, यह भी बात हमें नहीं चाहिए। Yeah, but I want to have that same thing that John the Baptist had, so that I can speak the truth always. I can be a fearless confronter. और मैं उन्हीं बातों की लालसा करता हूं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास थी, ताकि मैं सत्य को निर्भीकता से प्रचार कर सकूं और बिना डरे लोगों का सामना कर सकूं। Yeah, so that my relationship will never be based on favors done on each other. I want to be free from it. ताकि जो मेरा संबंध है वह दूसरों के ऊपर किए गए उपकारों के ऊपर निर्भर ना करे, मैं इन सारी चीजों से स्वतंत्र होना चाहता हूं। Yeah, and the third thing, brothers and sisters, was that John's greatest desire was that Jesus would increase and he would decrease.
और तीसरी बात जो है वो यूहन्ना की सबसे बड़ी लालसा और उसकी सबसे बड़ी लालसा यह थी कि प्रभु यीशु मसीह बढ़े और वह घटा जाए. Yeah, we can read the passage that Robert brother read in John chapter 3. और हम उस वचन को पढ़ सकते हैं जिसे रॉबर्ट ब्रदर ने पढ़ा था यूहन्ना 3 अध्याय से. Yeah, in over here in John chapter 3 verse 26, there was a comparison of spirituality and followers that was happening, and John told them that I've been called to call people to repentance and baptize them. और यहाँ पे यूहन्ना 3 के 26 में देखें तो यहाँ पे तुलना की जा रही है आत्मिकता की और अनुयायियों की, और उसके प्रत्युत्तर में यूहन्ना यह कहता है कि मुझे लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा देने के लिए बुलाया गया है. Yeah, verse 27, he says that a man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. और 27 वचन में यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता. So John the Baptist said that I will keep doing that. One thing that God has called me to do is to continue to baptize people and ensure I preach repentance. I will keep doing that. और यूहन्ना ने इस बात का ठान लिया और इस बात को निश्चय किया कि मैं उस काम को करता रहूंगा जिसके लिए प्रभु ने मुझे ठहराया है, और वह यह है कि मैं मन फिराव का प्रचार करता रहूंगा और उसके अनुसार बपतिस्मा देता रहूंगा. Yeah, brothers and sisters, I'm saying this because in verse 30 he says, he must increase but I must decrease. और भाइयों बहनों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 30 वचन में लिखा है कि वह बढ़े और मैं घटूं. Yeah, to decrease does not mean to stop doing what God has called me to do, but as brother Robert also mentioned, to be able to say that my joy is full now. और घटने का अर्थ यह नहीं कि जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने मुझे करने को बुलाया उसे मैं ना करूं, परंतु मेरा आनंद उसी के ऊपर निर्भर रहे. Yeah, so when you are really decreasing, your joy is made full. That is essentially what is happening in us. और जब आप वास्तविकता में घटते हो तो उसका परिणाम स्वरूप यह होता है कि आपका जो आनंद है वह भरपूर होता चला जाता है. You are being more and more faithful in what God has called you to do. और आप और अधिक विश्वास योग्य बनते चले जाते हैं उन सारी चीजों में जिनमें परमेश्वर ने आपको बुलाया है. There is no hint of jealousy because you know that this is what God has called you to do. और वहां पे जलन का जरा भी अंश नहीं रहता है क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि इसी कार्य को करने के लिए प्रभु ने आपको आमंत्रित किया है. Yeah, you will never desire to be somebody else, brothers and sisters, because your joy is made full and you would continue to decrease. और आप कभी भी दूसरे के समान बनने की लालसा नहीं करेंगे क्योंकि जो आपका आनंद है वह केवल घटती में ही है. Yeah, I'm saying this because many a times our identity of who we are depends on what we have done or achieved. और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अनेक बार जो हमारी जो पहचान है वो इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि जो हमने किया है या जिन बातों को हमने हासिल किया है. Yeah, but if you really know that if God has called you to just be an ordinary person, just to serve the tables, just to clean vessels, whatever it is, your joy would be made full and you would always continue to decrease. परंतु यदि आप इस बात को पहचान लेंगे कि प्रभु ने केवल आपको किस कार्य करने के लिए बुलाया है, चाहे वो मेज साफ करना हो या बर्तन साफ करना हो, तो आपका आनंद उसी में रहेगा और जैसे जैसे आप घटते जाएंगे वैसे वैसे आपका आनंद और बढ़ता चला जाएगा. Yeah, the amazing thing about John the Baptist, we also read in Luke chapter 7 too. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में एक अद्भुत बात हम लूका 7 अध्याय में भी पढ़ते हैं. Yeah, let us remember this one statement where he says, my joy has been made full. और इस कथन को हम याद रखें जहां पे वो कहता है कि मेरा आनंद पूरा हुआ है. Yeah, when he was in prison and he sends his disciples in verse 19, Luke 7:19, he sends his disciples to Jesus and asks, are you the expected one? Do we look for someone else? और लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 19 वचन में जब यूहन्ना बंदी गृह में डाल दिया गया तो अपने चेलों को तो यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? Yeah, if I was in John's place, I would have asked Jesus, Lord, can you get me out of this prison? और यदि मैं यूहन्ना की जगह में होता तो मैं प्रभु से यीशु से यह कहता कि क्या तू मुझे इस बंदी गृह से निकाल सकता है? Yeah, but John the Baptist's joy was already made full. परंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का आनंद पहले ही से परिपूर्ण हो गया था. Yeah, yes, there were doubts that he had, but the only thing he wanted to know was that, are you really the Messiah? Have I already met you now?
और हाँ, उसके जीवन में संदेह थी, परंतु केवल एकमात्र बात जिसे जानने की उसके अंदर लालसा थी वह यह थी कि क्या मसीहा जो आने वाला था वह तू ही है या हम किसी और की बात देखें। Yeah, when we read verse 24, that when the messengers of John had left, और 24 वचन में हम देखते हैं जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए, he began to speak to the crowds. After John's disciples leaves, Jesus speaks a wonderful thing about John the Baptist. जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा और कुछ अद्भुत बातें उसके विषय में कही। Yeah, I've heard this shared in the CFC church once, that Jesus did not feel that John needed that appreciation to be heard about him. So he let John's disciples go away, and then he then speaks some good things about John. और मैंने सीएफसी में इस बात को सुना था कलीसिया में कि यीशु को यह नहीं लगा कि यूहन्ना को इन बातों को, इन सराहना को सुनने की आवश्यकता है। तभी तो जब उसके चेले वहां से चले गए तब उसने यूहन्ना के विषय में सराहना की अद्भुत अद्भुत बातें कही। Yeah, and that is one of the most beautiful things that Jesus can ever speak about somebody, where he says that there is no one born amidst women, verse 28, that I say to you, among those born of women, there is no one greater than John. और 28 वचन में यीशु ने बहुत ही अद्भुत बात कही और वह यह है कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। Yes, brothers and sisters, that was the greatest compliment that a man can ever receive. But there is a second part to that, where he says that, yet who is least in the kingdom of God is greater than he. और भाइयों बहनों, यह जो बात है यह सबसे बड़ी सराहना की बात है जिसे कोई व्यक्ति प्रभु से प्राप्त कर सकता है। परंतु जो इस वचन का अगला भाग है वह लिखा है कि पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। Which means me and you, brothers and sisters, if we are in the kingdom of God, if we have really known God, then we can be greater than John the Baptist. और उसका अर्थ यह है कि आप और मैं भाइयों बहनों, यदि हम परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटे हैं तो हम सचमुच में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़े हो सकते हैं। So God can make my life unique, because today I have the Holy Spirit, which John the Baptist did not always have the way we have it. और इसलिए आज मेरे जीवन को परमेश्वर सबसे भिन्न बना सकता है क्योंकि हमारे पास वह पवित्र आत्मा है जो यूहन्ना के पास नहीं था। John was fearless. He was not a people pleaser. My life can be like that, because even the least in the kingdom of God can be greater than him. और यूहन्ना जो था वो निर्भीक था, वो लोगों को प्रसन्न करने वाला नहीं था और मेरा जीवन भी उसके समान हो सकता है क्योंकि स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा भी उससे व्यक्ति उससे बड़ा हो सकता है। And I can continue to decrease. My joy can be made full more than what it was done for John, because I have the Holy Spirit in me and I am a child of God today. और मैं भी निरंतर घटते हो सकता हूं और उससे मेरा आनंद बढ़ के हो सकता है और यूहन्ना से ज्यादा बढ़ के हो सकता है क्योंकि आज मेरे पास पवित्र आत्मा है और मैं परमेश्वर की एक संतान हूं। Yeah, brothers and sisters, there were probably one or more than one things which John did not have. He did not have the revelation, or he was not part of the crucifixion of Jesus Christ. That was one thing he did not have. और बहुत सारी बातें हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के पास नहीं थी, जिसमें से एक बात यह है कि उसके पास प्रकाशन नहीं था और वह यीशु मसीह के क्रूसीकरण का भागी नहीं बन पाया था। So he did not have that gratitude which me and you should be having. और उसके पास वह आभार नहीं हो सकता था जो आपके और मेरे पास होना चाहिए। We have much more light. We have God's word today with us. और हमारे पास उससे ज्यादा बढ़कर के प्रकाश है क्योंकि प्रभु का वचन हमारे साथ है। Yeah, gratitude for what the Lord has done for us. और किस बात के लिए आभार? उन बातों के लिए आभार जिन्हें प्रभु ने हमारे लिए किया है। And the gratitude for how he left his throne and walked with us. और उस बात के लिए आभार कि किस रीति से उसने अपने सिंहासन को त्याग दिया और हमारे साथ आकर के चला और फिरा। Yeah, and the gratitude that I can see him face to face one day. और इस बात के लिए भी आभार कि एक दिन मैं उसे आमने सामने देख सकता हूं। Yeah, and that is the promise that John the Baptist also mentioned, brothers and sisters, that when we are baptized and filled with the Holy Spirit, this gratitude can bring fire from heaven.
और यही वह बात है जिसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहता है कि जब हम बपतिस्मा लेकर के पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं तो यह जो आभार है यह स्वर्ग से अग्नि को ला सकता है। And who will baptize us? John himself says, and Jesus also says this, that Jesus will baptize us with the Holy Spirit. और यूहन्ना ने स्वयं इस बात को कहा कि यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, With Holy Spirit and fire. और पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा। And this fire will purge us from all the things that we heard, jealousy and not being able to overcome our tongue. It will purge us from our sins. और यह जो अग्नि है यह इन सारी चीजों से, जो पाप है, जो जुबान के पाप है या जलन है, इन सारी चीजों से हमें शुद्ध करेगी। Yeah, just like a small child, brothers and sisters, when you give a little child milk, and the baby is crying and you give the child milk. और ठीक वैसे ही एक छोटे बच्चे के समान जब वह बच्चा रोता है दूध के लिए और आप उसके हाथों में दूध पकड़ाते हैं, and once that 150 180 ml, whatever amount of milk the baby drinks, once the child finishes drinking that milk, you find a completely different person in that child. और जैसे ही कितने भी मात्रा में दूध वो बच्चा क्यों ना पिए, परंतु जितना भी दूध वह बच्चा पीता है तो दूध पीने के बाद आप इस बात को पाएंगे कि वह बच्चा पूरी रीति से एक विभिन्न व्यक्ति में परिवर्तित हो जाता है। Yeah, and there is a different joy, that fulfillment that only the Lord can give. और एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही तृप्ति है जिसे केवल प्रभु ही दे सकता है। Yeah, John definitely experienced it. That's why he says his joy was made full. और यूहन्ना ने इस बात को निश्चित तौर पे अनुभव किया, तभी तो उसने कहा कि मेरा आनंद अब पूरा हुआ है। Yeah, but why is it that our lives, we are not always able to be in that constant joy? परंतु ऐसा क्यों है कि हमारे जीवनों में हम निरंतर उस आनंद में नहीं रह पाते हैं? Yeah, there is something missing, brothers and sisters, that we are not always able to be joyful. That there are many things in our life, like this verse in 1 Peter 2:1 says that there is probably malice. There is we think bad. Probably we have hypocrisy in us. Probably our tongues are not good. और इसका कारण यह हो सकता है जैसे बहुत सारी बातें जो पहला पत्र दूसरे अध्याय में लिखी गई हैं, और वह यह है कि शायद हमारे अंदर किसी प्रकार का बैर भाव हो सकता है, छल हो सकता है, कपट हो सकता है, डाह निंदा, ये सारी बातें हो सकती हैं। Yeah, so is it because I'm not, is the reason that I'm not able to get rid of these things because like a newborn infant I'm not craving pure milk? Is that the reason why? और इन चीजों से शायद मैं दूर नहीं हो पा रहा हूं, तो इन चीजों का कारण क्या यह है कि एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान मैं निर्मल आत्मिक दूध की लालसा नहीं कर रहा हूं क्या? And because I'm not craving for pure spiritual milk, I am not growing up in my salvation. और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं निर्मल आत्मिक दूध की लालसा नहीं कर रहा हूं, इसी कारण से मैं अपने उद्धार में नहीं बढ़ पा रहा हूं। Even though I have tasted that the Lord is good. और इसके बावजूद भी मैं नहीं बढ़ पा रहा हूं, इन जानते हुए कि मैंने इस बात को चख के जाना है कि प्रभु भला है। Yeah, brothers and sisters, our Lord is good. भाइयों बहनों, हमारा जो प्रभु है वो भला है। And you and me, even though we are least in the kingdom of God, our life can be much, much more fulfilling than John the Baptist. और आप और मैं, हम जो हैं, हमारा जो जीवन है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन से कहीं अधिक तृप्तिजनक और संतोषजनक हो सकता है। And I really believe that if God can remove jealousy from our hearts, that one thing, if God can remove from our hearts. और मैं सचमुच में विश्वास करता हूं कि यदि प्रभु वास्तविकता में जलन को, केवल इसी एक बात को यदि हमारे हृदय से निकाल बाहर करे, He would have done a tremendous work in each of our lives. तो उसने हम में से हर एक के जीवन में एक बहुत ही अद्भुत कार्य को कर दिखाया है फिर। Yeah, there is nothing impossible for our Lord. और हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। Yeah, this promise, brothers and sisters, always remember this promise that your life can be much more fruitful than John the Baptist because of the perfect sacrifice of our Lord for you and me. और आप इस बात को हमेशा स्मरण रखें भाइयों बहनों की, जो हमारा जीवन है वह यूहन्ना के जीवन से अधिक फलवंत हो सकता है केवल उस शुद्ध बलिदान के द्वारा जिसे प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए दिया। Yeah, but let us not remember some of these few things that we learned from John's life.
और हम इन चीजों को जो आज कुछ बातें जो हमने सीखी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन से हम उन्हें ना भूलें। Yeah, like for example, John was in the wilderness, ready and waiting and preparing for a long period of time. और उदाहरण स्वरूप यूहन्ना जो था वो मरुस्थल में इंतजार कर रहा था और अपने आप को तैयार कर रहा था बहुत ही लंबे समय के से। Yeah, that does not change even in the new covenant, even for children of God. और यह बात जो है यह नई वाचा में भी परमेश्वर के संतानों के लिए यह बात नहीं बदली है। Yeah, if you are not like a newborn infant, if you are not waiting to listen to the Lord and not craving for pure spiritual milk, we cannot expect our Lord to bless us. और यदि हम नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा नहीं कर रहे हैं तो हम प्रभु से भी यह आशा नहीं रख सकते हैं कि वह हमें आशीषित करे। Yeah, and may we really pray that God will give us that hunger, that desire, that gratitude, so that our life will be much more fruitful. और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमारे अंदर यह भूख, यह लालसा और यह अभिवादन को डाले जिसकी वजह से हम जैसा प्रभु चाहता है वैसा बन पाए। Yeah, like when a little baby cries, the only thing that can satisfy the child is a bottle of milk. और जब एक छोटा बच्चा रोता है तो केवल एक ही बात है जो उसे तृप्त कर सकती है और वह है दूध की एक बोतल। Yeah, but the only thing that can satisfy mine and your soul is the anointing, the filling of the Holy Spirit. और केवल एक ही बात जो हमारे मन और प्राण को तृप्त कर सकती है वह है पवित्र आत्मा से भरा जाना। Yeah, and let us go to the Lord with gratitude, brothers and sisters. Like the song that we sang today, it was a very beautiful song that was sung today, where it said, "I once was lost in the darkest night." और हम सब अभिवादन के साथ प्रभु के पास जाएं भाइयों बहनों, और जैसा आज हमने जो गीत में गाया कि एक समय था जब मैं अंधकार में समयों में खोया हुआ था। Yeah, yet thought I knew the way. I thought I knew the way. और उसके बावजूद भी मैं मानता था कि मुझे रास्ता मालूम है। The sin that promised joy and life had led me to the grave. और वह पाप जिसने मुझे आनंद की जो हियाव बंधाया था वह मुझे कब्र की ओर ले गया। I had no hope that you would own me. और मेरे पास कोई आशा नहीं थी कि तू मुझे अपनाएगा। I was a rebel to your will, it says. और मैं तो एक विद्रोही था, तेरे प्रति एक हट्ठी था। And if you had not loved me first, और यदि तूने मुझसे पहले प्रेम नहीं किया होता, I would refuse you still. तो मैं फिर भी तेरा इनकार कर बैठता। Our Lord loved me and you first. और हमारे प्रभु ने मुझे और आपको सबसे पहले प्रेम किया। Yeah, not so that you could live a defeated life, brothers and sisters. और इसलिए नहीं कि आप एक पराजित जीवन जियो भाइयों और बहनों। He has loved you first so that you could taste that love. और उसने आपको पहले प्रेम इसलिए किया ताकि आप उस प्रेम के स्वाद को चख सको। And you would never ever refuse it. और आप कभी उसे नकारो नहीं। Yeah, the taste of that love will fill your hearts with so much gratitude. और उस प्रेम का जो स्वाद है वह आपके हृदय को इतने ज्यादा आभार से भर देगा That will definitely bring fire from heaven and purge your life of all the evil that is there in our flesh. जो निश्चित तौर पे स्वर्ग से आपके जीवन में अग्नि को उतार लाएगा और आपके जीवन से हर एक पाप को भस्म कर देगा। Yeah, it's a great promise for the new covenant children of God, brothers and sisters. और यह नई वाचा के परमेश्वर के संतानों के लिए यह एक बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा है। Just because of the perfect sacrifice for us. केवल प्रभु के सिद्ध बलिदान की वजह से। It's a greater life. It's a greater life for us. और यह एक बढ़कर और बेहतर जीवन है। Yeah, as John said, my joy was made full. May yours and mine joy be made full. और जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मेरा आनंद पूरा हो, वैसे ही आपका और मेरा आनंद भी पूरा किया जाए। Yeah, may our Lord help us. Amen. और हमारा प्रभु हमारी सहायता करे। Dear brothers and sisters, I praise God for for what we